Hello everyone, I am Yogesh and my friend Ashutosh Sharma doing Masters in Computer Application from MERI College, and we are going to explain about our web development project. So let me dive into the project now. So the main project idea is creating a shopping website. So we have created a shopping site and we named as Tanishka Electric website. The website is user-friendly and is compatible on different browsers, which also contains Origin and latest brands appliances. The website allows the user to create an account and use the site with the respective login. It allows the user to watch our latest appliances gadget of top brands. Technology used: ASP.NET MVC, SQL Server 2012, JavaScript, jQuery, Bootstrap, and Entity Framework. So, in the pros and cons of technologies used: pros, flexibility and better design apps, speed, OS independence accomplished using one programming language. SQL Server is easier to work with, the better suited to the needs of web application than relational database. So I'm using MVC to create website very easily. Cons: some of the records are lost in SQL Server and it is not reliable to and solve. So what we lesson learn here while making a website, there were some design challenges like improving the navigation systems and redesign the dashboard. Get up to speed on the latest tips and tricks being used in web development. Most things take longer than expected, so plan for everything. Expect changes in navigation, content, concept execution, many more functionality we were used. So now the website is built using ASP.NET MVC5. Information in the website is stored in SQL. Okay. Then the website includes the following features: create account and login, watch latest branded electronic appliances, contact us if any query, add to cart, online payment options. And we have one more navigation panel, or we can say this is the admin panel, where we can edit and you know add the details of the customers, orders, stock, and supplier in the ad through the admin panel. So first step is you have to create an account. Okay, create account page has feature like mail, password, and confirm password. The user can create an account by giving an email ID password and confirm the password. Once the sign up button is clicked, the user credentials will get stored in SQL Server in the encrypted format. Okay. So here we done a register page. This is a register page. Okay, you have to put email address, password, and confirm password. So now going to the login page. Login can be done using regular login. In this page, the user can log to the website using their respective email ID and password. On click the login, the application will automatically authenticate the user with the credentials stored in database. So this is our login page. You have to put your email and password. Now coming to the home page, the main page after register and login. In the home page, the latest branded electronics appliances with their content, the user can read and search the product according to their need. User can buy their product to just click to the add to cart option. User can also filter their category and chooses the product. Product price and units available in home page. So this is our home page. Here is a category which you can select which kind of product you want to buy. And there is an add to cart button. When you add to the cart button, this will generate a one in your basket. The supplier,
suppliers which supplier is getting to give us product from this site, and contact us if any query related our product. Shopping cart. In cart, you can add items and remove items from the cart or continue for payment option. If you don't want to buy product, you can clear your shopping cart. So this is a shopping cart. Here you can increase your amount of product and you can remove the product. And if you don't want whole product, then you can clear the cart. If you want to buy this product, you have to just continue the option, continue button. You have to click and go to the this continue button redirect to this page, purchase page. Okay, you have to fill all those uh, fields here. Okay, and just click on the create button. So the page is so the your uh, amount of the product is purchased. So this will redirect to the congratulation page. Purchase is has placed successfully. Okay. So here now is the admin panel. You have to create. You can create your products here. PID, product name, brand, unit price, stocks, category, description, supplier, and role. Okay, and you can edit and details. You can edit and get the details, or you can delete the particular brand stock unit. Admin suppliers order. Here, if any supplier want to uh, sell their product, so you want to, so you have to create this, create new and add to this our website. Admin customers. Here's the admin customers. Okay, who purchased our product? Who purchased our product? So Jack White is our customer, and this is the admin orders. Means if currently orders will be here, if I purchased and then come to this order, you can see all the information of order list here. Currently is empty, and this is the admin stock. This is the admin stock, and the currently unit of stock, units in stock here, and reorder level here. Okay, so this is a graph which is basically gives us the detail of the uh, product availability. Thank you, and now we are going to the live implementation of the website. It's our applications. We developed application name as Tanishka Electricals. It's a product based application. You can filter out these products. It's here. It's all products here. Suppose that washing machine, kettles, microwave. It's just same as जस्ट एक हमने एक एप्लीकेशन बनाई है. जैसे सपोज दैट एक फ्लिपकार्ट होता है, उसके अंदर भी हम सेल परचेज करते हैं, वैसे ही एक हमने प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट जैसे भी ऐड होंगे वो हमारे ऐड टू बास्केट के अंदर हमारे यहाँ दिखाई देना है. सपोज दैट मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ऐड एज कार्ड, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन में ऐड करता हूँ कार्ड के अंदर, तो वो मेरी बास्केट के अंदर फॉल हो जाएगी. सपोज दैट ये हमारे पास 2 बार ऐड हो चुके हैं 300 रिकॉर्ड के साथ. मैं इसे जस्ट क्लिक चेकआउट करता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ दिखाई देने लग जाती है कि मैंने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने ऐड कर दिया है. ठीक है, 300 रुपीज़ की है, डॉलर की है, और ये मैंने क्लिक करके मैं इसमें से एक रिमूव भी कर सकता हूँ, और इसमें जस्ट मैं एक ऐड भी कर सकता हूँ, इसमें हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही मैं जस्ट इसमें क्लिक टू कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये एक पेज खुलता है कि इन्फॉर्मेशन पेज खुलता है कि हमें ये किस पर्टिकुलर पर्सन और उसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, और उसका कोड क्या है, और उसकी पेमेंट का ऑप्शन क्या है, मेथड क्या है,
और उसका कार्ड नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है। ओके, तो मैं जस्ट एक बार डिटेल्स फिल करता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ से हम कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मास्टर कार्ड है एमएक्स है। मैं मास्टर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसके अंदर हमारे पास एक वैलिडेशन लगी हुई है कि हमें 16 डिजिट ही एंटर करनी है इसके अंदर। तो मैं एक इसमें 16 डिजिट की एक नंबर एंटर कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं एक्सपायरी, मतलब कि हमें की डिलीवरी कब चाहिए इसकी। मैं सपोज दैट 30 की डिलीवरी ले लेता हूँ और मैं इसे क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे क्रिएट करूंगा, एक हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुल का आता है और ये हमारा डायरेक्ट टू हमारे एडमिन पैनल पर चला जाता है। एडमिन पैनल हमारा बेसिकली क्या है कि सपोज दैट एक ये हम प्रोडक्ट, ये मतलब तनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स एक एक सप्लायर की है। तो सप्लायर एक हमारे क्या होता है कि उसके पास एक एडमिन पैनल होगा, वो अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, उसमें डिक्रीज कर सकता है और जो कस्टमर ऑर्डर करेगा वो हमारे पास एडमिन पैनल तनिष्का के पास ही जाएगा। ठीक है, तो मैं उस जस्ट एक एडमिन पैनल से लॉग इन कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं एडमिन पैनल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डेट की आज एंट्री आ जाएगी। ये हमारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर भी होते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एडमिन पैनल के अंदर हमारे प्रोडक्ट क्या है, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट व्यू होने लग जाएंगे। जैसे ऑर्डर की डिटेल के अंदर मैंने अभी ऑर्डर करा था इसके अंदर। ठीक है, मैंने ऑर्डर पे क्लिक करा है तो ऑर्डर की डिटेल के अंदर मैं ऑर्डर करा था, अभी आज का ऑर्डर एक करा था। तो उसकी एंट्री हमारी क्रिएट हो चुकी है $600 की और 2 टाइम्स में आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और सपोज डेट मैं इसमें कस्टमर्स देखता हूँ कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं। तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर पर्सन जैक, कैलिन, योगेश, आशुतोष। ओके, ये मल्टीपल एंट्रीज ऑफ आशुतोष, मतलब कि इसमें मैनी सेम नेम के भी हम कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं जिनका कार्ड नंबर अलग है और जिसका हमारे पास डिटेल्स अलग भी हो सकते हैं। ओके, हम सप्लायर ऐड करते हैं इसके अंदर। सप्लायर्स हमारे क्या क्या होते हैं, हम सप्लायर्स भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो सप्लायर्स हैं, एलजी और बोवेल। ओके, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स भी अपने ऐड कर सकते हैं एडमिन पैनल में हम जाके यहाँ से। ठीक है, एडमिन पैनल में जैसे सपोज दैट अभी हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैं जैसे यहाँ से प्रोडक्ट एक ऐड करूंगा, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट करता हूँ। तो एक हमारे पास प्रोडक्ट, मैं सपोज दैट एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, माइक्रोवेव। ठीक है, ब्रांड सपोज दैट इसका हम लेते हैं एचपी। ओके, यूनिट प्राइस हमने ली है कि उसकी ₹1000 यूनिट प्राइस है और हमारे पास अवेलेबल स्टॉक अभी मेरे पास 20 है। और मेरी ये कैटेगरी फॉल करता है प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सपोज दैट यहाँ पे कर देता हूँ कि कलर इन ब्लैक। ओके, और सप्लायर मेरा एलजी से आ रहा है वो। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्रिएट करता हूँ तो मेरे ये माइक्रोवेव यहाँ पे मुझे दिखाई देने लग जाएगा। मैं इसे चेक करूंगा तो ये मेरा माइक्रोवेव यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। 1000 मतलब कि रुपीज का इसकी पर प्राइस है और इसका अवेलेबल स्टॉक कितना है, ये मशीनरी हमने क्या करा है कैटेगरी, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में क्या है। और हम इसे एडिट भी कर सकते हैं और इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से जस्ट व्यू करके। ठीक है, तो मैं एक बार जस्ट मैं एक, ये हमारा जो पूरा डाटाबेस है, ये हमारा एक डाटाबेस के अंदर हमने एक डाटाबेस बनाया है, उसके अंदर हमारे डाटा सारा सेव्स होता है। तो अगर मैं डाटाबेस का दिखा दूँ तो इसके अंदर क्या है हमारा, सपोज दैट कि हमारा एक डाटाबेस है। ठीक है, जैसे ही मैं शॉपिंग करता हूँ तो मेरी एक एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाती है।
तो अभी इसके अंदर हमारा एक एंट्री आई है, ठीक है। 3 एंट्री हमारी आई ना, कि जैसे ही मैं शॉप कार्ड ऐड टू कार्ड जाता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल इंटरफेस पर आता हूँ, नॉर्मल इंटरफेस पर आ गया, और हमारी यहाँ पे माइक्रोवेव वाली जो अभी हमें एंट्री क्रिएट करी थी, वो माइक्रोवेव वाली एंट्री हमारी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से ऐड करता हूँ कार्ड, सपोज दैट मैं माइक्रोवेव यहाँ से ऐड कार्ड करता हूँ, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बास्केट के अंदर दिखाई दे जाती है, 2 एंट्री बन गई। अब मैं इस टेबल को जैसे ही रन करूंगा ना, तो ये हमारा डाटा सेव हो रहा है, ये हमारे शॉपिंग कार्ट वाले डिटेल्स में। सपोज दैट मैं शॉपिंग कार्ट वाली डिटेल्स एंट्री रन करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास 2 एंट्री, माइक्रोवेव की एक एंट्री हमारी क्रिएट होकर आ गई, ठीक है। जैसे ही माइक्रोवेव की एंट्री क्रिएट करके और मैं ऑर्डर्स के अंदर जाऊंगा, तो वो एंट्री हमारी ऑर्डर के अंदर वो फॉलो होने स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे उसकी एक आईडी हमारे ऑर्डर के अंदर फॉलो होने स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अंदर डेट आता है। इसके अंदर क्या है कि ऑर्डर डेट हमने सपोज डेट आज करी है, आज मैंने भी एक ही ऑर्डर करा है, जो आपके सामने भी 2 वाला करा था। मैं एक और ऑर्डर करता हूँ, तो उसकी एंट्री एक और जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। मैं एक बार ऑर्डर इसकी करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाके और मैं चेकआउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, वो कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे सपोज डेट मैं एक बार फिर दोबारा से एक फिल करता हूँ डिटेल। और इसके अंदर अभी हमने क्या है कि हमने 50 कैरेक्टर तक की लिमिट लगा रखी है, तो इसलिए हम 50 से ज़्यादा हम कैरेक्टर ले नहीं सकते यहाँ पे। और मैं इसमें सपोज मास्टर कार्ड यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ फिर वही वैलिडेशन हमारी उस 16 डिजिट की है, तो मैं इसके अंदर वैलिडेशन 16 डिजिट की फिल कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर एक वो डेट, सही डेट सेलेक्ट करते हैं हम, 29, और इसे हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे सक्सेसफुल, तो ये हमारा डाटा जो है वो हमारी ऑर्डर वाली टेबल में फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डर वाली टेबल में भी हमारी दो, आज की डेट की जस्ट एंट्री 2 ऑफ मई की हमारी एक ही है। मैं इसे जस्ट क्लिक करता हूँ, तो 2 ऑफ मई की एंट्री मेरी 2 हो जाएंगी वहाँ पे। 2 ऑफ मई की एंट्री मेरी वहाँ से जो ऑर्डर था, और यहाँ से हमारा जो शिप कार्ट है उसके अंदर से ऑर्डर हमारा मतलब कि डिक्लाइन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे वो हमारा फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑर्डर के अंदर वो आ जाता है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स के है कि जो हमने ऑर्डर करे हैं प्रोडक्ट, सपोज दैट मैं अभी इसे क्लिक करके दिखा दूँ, जो हमारे ऑर्डर जा रहे हैं, ठीक है, कि हमारा ये कितने परसेंट की टोटल सेल हमारी कितनी, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि सेल हमारी कितनी है। तो हमारी अभी एक हमारी सेल करी थी इसने 1000 वाली, जो हमने माइक्रोवेव वाला है, वो सेल भी हमारी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स, मेन जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, सपोज दैट मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट्स है मेन, जो हम मेन डाटाबेस में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये जो डाटाबेस में हमने मेन में यहाँ पे ऐड करा हमने ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो डिटेल्स है वो सारी हमारी डिटेल जो है वो हमारे इस डाटाबेस के अंदर फिल हो रही है। यहाँ पे डाटाबेस के अंदर फिल होती है कि हमारा ब्रांड क्या है, यूनिट क्या है, कैटेगरी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और हमारा वो किस उसमें फॉल करता है। एसबीआई की हमारी एक आईडी बन रही है इसकी ना, और ये हमारा कि वो डिलीटिंग परमिशन के वो हमारा यहाँ पे वो लगा हुआ है, डिलीट परमिशन का। हमारे कस्टमर्स कितने, जो चेक और गैलिन के हमारे कस्टमर्स थे ना, वो जो हमारे कस्टमर्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, तो वो हमारे कस्टमर्स कितने, वो भी हमारे कस्टमर दिखाई देने लग गए, हमने ये कस्टमर्स क्रिएट करे हैं, ठीक है। और जैसी हम एंट्री, हम नई नई एंट्री आती जाती है, तो हमारे कस्टमर डाटाबेस में ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ एंट्री क्या है, जितनी बार हम उसमें एक ही पर्सन हमारे पास 2 टाइम एंट्री करके और 2 बार डाटा ले रहा है, तो हमारे पास वो कस्टमर में 2 टाइम्स में एंट्री जाती है, वो डाटा हमेशा सेव होता है, क्योंकि इसकी हमेशा क्या कि नेम हमारा सेम है, फोन नंबर भी हमारा सेम है, बट इसका क्या है कि एड्रेस हमारा चेंज हो गया इसका, तो हर पर्टिकुलर केस में एड्रेस हमारा चेंज हो सकता है। तो हमारा एड्रेस चेंज करने के लिए इसलिए हमने एक टेबल मेंटेन कर रखी है। एक हमारा सप्लायर्स मतलब हमारा जो हम सप्लायर जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बोल दैट जो कस्टमर है, जो मतलब कि सप्लायर है, सप्लायर मीन्स कि मेरा एलजी एक सप्लायर है, ठीक है, एलजी एक ब्रांड है, और जो हमारा सप्लायर है वो एलजी से प्रोडक्ट लेता है और फिर वो कस्टमर को डिलीवर करता है। तो वो जो कस्टमर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से सप्लायर वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, एलजी का चाहिए, फोरवेल का चाहिए, ठीक है। ये एक जस्ट हमने एक एप्लीकेशन बनाई है। अभी इसके अंदर वो क्या है, फर्दर हमने एनहांसमेंट अभी इसके अंदर क्या है कि हमारे पास पेमेंट गेटवे और ये वाला इस करके वो आगे फर्दर हमारी एनहांसमेंट नहीं है। तो ये हमारी प्रोडक्ट पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हम एक ना एडमिन पैनल के अंदर हम ग्राफ भी हम शो कर सकते हैं। तो हम ग्राफ हम क्या शो करते हैं कि जिसके अंदर की सपोज दैट हमें इसके अंदर स्टॉक की हमें रिपोर्ट देखनी है, तो हमारी स्टॉक की रिपोर्ट भी एक हमारे पास आती है यहाँ पे।
स्टॉक की रिपोर्ट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक हमारे पास पर्टिकुलर कैटेगरी का क्या क्या स्टॉक है और हमने इसके अंदर कितनी हमने सेल करी है, कितने हमारे पास स्टॉक अभी लिमिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉक के का हमने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, और इसके अंदर हमने रीऑर्डर लेवल फिक्स कर रखा है कि हमारे पास रीऑर्डर लेवल क्या क्या होना चाहिए। ये हमारा ग्राफ है। तो सपोज दैट सेमी ऑटोमेशन मशीन मेरी हमारे पास 46 है और हमने रीऑर्डर लेवल सेट कर जैसे ही मेरा 10 तक ये ऑर्डर लेवल डिक्रीज होकर 10 पे आ जाता है तो मेरा रीऑर्डर लेवल ऑटोमेटिकली हो जाए और ये इससे नीचे फॉल ना होने दे, ये मुझे फिल करने के लिए डाटा को इंसर्ट करे। ये आगे फर्दर हमारा एनहांसमेंट है कि हम इसे फर्दर आगे जब इसे एज हम होस्टिंग करके करेंगे तो हम इसे फर्दर आगे एज ये करेंगे। अभी माइक्रोवेव के अंदर क्या है कि हमने हमारा कोई अभी सेल नहीं हुई है और हमने रीऑर्डर लेवल इसमें हमने सेट नहीं करा है हमारा। बस इसके अंदर जैसे 20 की मेरी एंट्री थी और एक मैंने माइनस कर दिया था सेल के डाल दिया तो हमारी 19 पे वो स्टॉक आ गया। दैट्स द प्रोडक्ट। थैंक यू।